Good afternoon to all. In previous class, we discussed about the basic concepts of mathematical modeling of mechanical system, right? And today we will discuss about some questions related to the mathematical modeling of the mechanical system, right? So we start with this particular question. There is a mechanical system is given. There is a fixed support, and there are two masses are given, right? Suppose I write in different page, that is there is a mechanical system and there is a fixed support is given. This is the fixed support, and there is a spring K1, and there is a mass M1. There is a mass M1, and there is a damper, that is B1, and there is a spring with spring constant K2, right? This is the damping coefficient B1, and this spring and damper is connected to the another mass, that is M2, and there is a friction given for M2 is B2, and this particular mass displacement is given by x1, and this particular mass M2, that displacement is given by x2, and we applied a force, external force F1 is given, right? This particular mechanical system is given, right? And there is a roller. There is no requirement roller because there is no friction is given. So this is the mechanical system, right? अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है जब भी आपको मैकेनिकल सिस्टम से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट? So first approach or the first step to find out the differential equation. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ मासेस. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मासेस कितने दिख रहे हैं, 2. तो नंबर ऑफ मासेस मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर ऑफ मासेस मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले आप मास m1 के लिए अप्लाई करोगे, देन मास m2 के लिए, राइट? सपोज आई अप्लाइड फॉर मास m1. ठीक है, मैं मास m1 के लिए सपोज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करूँ, राइट? तो अगर मैं मास m1 की बात करता हूँ तो m1 से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, k1, b1 एंड k2. दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, राइट? दैट मीन्स अगर मैं मास m1 के एक्सटर्नल फोर्स की बात करता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F1. तो सपोज देयर इज ए मास m1, तो दिस इज द मास m1, और इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सपोज एक्सटर्नल फोर्स इज F. देन व्हाट आर द अबाउट द रेजिस्टिव फोर्सेस? तो रेजिस्टिव फोर्सेस itself due to the mass m1, that is suppose it is denoted by F_m1, and resistive force due to the k1, it denoted by Fk1, and resistive force due to the b1, that is Fb1, and resistive force due to the k2, right? Because these k1, b1 and k2 are connected to this particular mass m1, right? This particular Fm1, Fk1, Fb1 and Fk2 are the resistive forces, right? And by using D'Alembert's principle, we can write total force equal to Fm1 plus Fk1 plus Fb1 plus Fk2, right? These are the resistive forces. So I have applied here D'Alembert's principle for mass m1, right? And what is the value of Fm1? Because here for m1 the displacement is x1, right? So for mass m1, Fm1 gives by the d square x1 upon dt square, right? What is the Fk2? Sorry, k1, because this particular k1 is connected between mass m1 and reference point, right? And displacement is x1, so Fk1 is k into x, right? So k1 into x1. And for Fb1, so b1 is connected between mass m2 and m2, and displacement are x1 and x2. If we are writing the equation for mass m1, that means x1, then we put here positive sign for x1, right?
So for b1 equal to b1 into d by dt of x1 minus x2, right? By dt of x1 minus x2 plus fk2, and k2 is connected between again mass m1 and m2, so k into x, so here k2 into x1 minus x2, right? So this is the first differential equation for mass m1. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में किसी को डाउट? यहां तक इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? No, sir. Then we go for mass m2. If we are writing the equation for mass m2, so there are two elements connected to the mass m2, that is b1 and k2, right? So for mass m2 there is no external force applied. There is no external force applied. That means external force applied is 0. And what are the resistive forces? Resistive forces due to mass itself, that is Fm2. And what are the element connected? B1 and K2, right? अब इसके साथ साथ एक B2 भी कनेक्टेड है, राइट? तो ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको डैम्पिंग भी आपको दे सकता है, और आपको कभी डैम्पिंग जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो भी आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है? तो या तो आपको डैम्पर गिवन हो, तो डैम्पर के लिए जो आप इक्वेशन लिख रहे हो वही आप फ्रिक्शन के लिए भी आप वही सेम टर्म लिखोगे, दैट इज बी डी एक्स बाई डी टी, राइट? ये आपको मैंने बताया नहीं था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है। तो फोर्स ड्यू टू मास m2 इज Fm2 itself, and फोर्स रेजिस्टिव फोर्स दैट इज F ड्यू टू कौन सा फोर्स होगा? B1 के थ्रू, दैट इज FB1, FB2 ड्यू टू B2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एंड FK2 due to spring with spring constant K2. These are the resistive forces. So by using D'Alembert's principle, that Fm2 plus Fb1 plus Fb2 plus Fk2 equal to 0, right? So first we will write Fm2, then here displacement is x2, right? So Fm2 is given by F2 into d square x2 upon dt square. If we are applying the B1, here B1 is connected between mass M1 and M2. If we are writing the equation for mass M2 for displacement x2, so the displacement x2 will have positive sign. So what will be the equation? B1 into d by dt, मैं short form में लिख रहा हूँ, that is x2 minus x1, ठीक है? x2 minus x1. Then again we are applying for B2. This B2 is connected between mass M2 and this reference point, right? So for mass M2, displacement is x2. So there is a single displacement, that is B2 into x2, plus Fk2, that K2 is connected between 2 points, and x1 with displacement x1 and x2, and we put here positive sign for x2. So K2 into x2 minus x1. Or external force applied, there is no external force applied, that means equal to 0. So this is the second equation. So in this particular question, it is asking about the differential equation, right? So these are the differential equation, number 1 and number 2. Any doubt in this particular question? Guys, please respond in chat box. Then move to the next question. Then the next question is that find the ट्रांसफर फंक्शन एक्स नोट एस अपॉन एक्स आई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है? सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन की, दैट एक्स नोट एस अपॉन एक्स आई ऑफ एस, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन जब भी आपको फाइंड करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, अप्रोच क्या होगी? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, then we take Laplace transform, and
फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग द डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल। तो उसके बाद में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, देन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो आपके पास जो अप्रोच रहेगी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, अगर आपको मैकेनिकल सिस्टम गिवन है तो आपके पास अप्रोच ये वाली रहेगी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, का आपको मास गिवन है, दिस इज द मास, ठीक है। इस मास से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग इज के एंड देयर इज ए डैम्पर with damping coefficient B, and there are two displacement, one through the mass, that is x naught, and one through this xi, right? There are two displacement, right? Or there is no external force in this particular system, there is no external force, right? This is the mechanical system is given on, and in this particular question is asking about x naught is upon x is, right? ट्रांसफर फंक्शन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है, सपोज दिस इज द मास m, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो मास m1 से कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड है, k एंड p, राइट। तो रेजिस्टिव फोर्सेज आर Fm ड्यू टू itself m, ड्यू टू b damping coefficient, due to spring k, that is Fk. There are three resistive forces are applied. So what is, according to the D'Alembert principle, what we can write, because there is no external force, so there is a zero, right? So m into d square, अब देखो m से कनेक्टेड क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो d स्क्वायर x नॉट अपॉन dt स्क्वायर, राइट, प्लस b इंटू, अब b किस किस के बीच में कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मास की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहे हैं, x नोट की। सो x1 इज, x नोट इज पॉजिटिव, तो d बाई dt ऑफ x नोट माइनस xi, राइट, x नोट, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख के डायरेक्टली लिख देते हैं, x नोट माइनस dx बाई dt, देन force due to k, then k is connected between this particular point and this particular point, right? So here displacement is x naught, so distance x naught is positive, so plus k into x naught minus xi, right? So this is unequal to 0, there is no external force applied, so displacement is 0. Any doubt in this equation? Then second step, what we can do, that we taking the Laplace transform, and we are taking, suppose we are taking the Laplace transform, so in this particular question transfer function is asking, right? Suppose we know that Laplace transform of ft is f of s, ये आपको पता है पहले से, Laplace transform of ft is f of s, so what is the Laplace transform of f dash t, that is s f of s minus f0, right? That you already know about that, and ये क्या फाइंड करा रहा है, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना इस चीज़, दैट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो, राइट। So when it is asking about the transfer function, so initial condition are 0, that means value of f0 is 0, right? Then if you are finding out Laplace transform of f double dash t, so Laplace transform of f double dash is s square fs minus s f0 minus f dash 0, right? So same here, initial condition are 0, that means value of 0 is 0 and value of f dash equal to 0. So Laplace transform of f dash t equal to sfs when initial condition are 0, then Laplace transform of f dash t is
एस स्क्वायर एफ एस व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अपन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन में, ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया पूरे कंट्रोल सिस्टम में, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार बताने के बाद में आप समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एम इज कांस्टेंट, so d स्क्वायर एक्स नोट अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर इंटू एक्स नोट एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। d इज कांस्टेंट, b इंटू एस इंटू एक्स नोट एस एंड माइनस b मल्टीप्लाई हो जाएगा s इंटू एक्स आई एस, राइट, क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन है तो x इंटू एक्स एस होगा, राइट, प्लस एक्स नोट टी दैट इज k इंटू एक्स नोट एस माइनस k इंटू एक्स आई एस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, जिस k, b and m, right, these are the constant quantity and these xi, x naught, right, these are the depending quantity on the time। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपको x नोट और xi के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वी कैन कॉमन x नोट s दैट इज एम एस स्क्वायर, यहाँ पर आपका एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन बी एस देन के, राइट, यहाँ से बी एस कॉमन आ गया एक्स नोट एस में, यहाँ पर आपका के कॉमन आ गया। ठीक है, एक्स नोट एस मैंने कॉमन ले लिया। अब ये टर्म जो है एक्स आई एस को वाली टर्म से अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, देन दीज टर्म्स आर इन नेगेटिव साइन व्हेन वी आर कन्वर्टिंग टू द राइट हैंड साइड, so xis will be common quantity and what will be the common, that is bs plus k. So in this particular question it is asking x naught s divided by xis, so bs plus k divided by m s square plus bs plus k, this is the transfer function। So this is the answer। Any doubt in this particular question? So move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। सेम आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम आर गिवन। इन प्रीवियस क्वेश्चन देयर इज a system related to the mechanical translation system, right, but in this particular question the system is mechanical rotational system, so it is asking about theta to f divided by t of s ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो सेम काम करना आपको, प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट इज सेम। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या सेम रहेगा, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मास, देन you have to apply find the differential equation, then taking the Laplace transform and finding out the transfer function according to the question। ठीक है, this is particular method is applied for every question, right। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन अपन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक आपके पास J1 है और एक J2 बीच में K। तो यहाँ पर देखते हैं मास विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 and there is a spring connected between two mass, that is spring constant K, and there is another mass with moment of inertia J2 and the torque applied at this point for the mass J1 is T। टॉर्क अप्लाइड कितना कर रहे हैं, T कर रहे हैं, ठीक है। एंड J2 पर जो है कनेक्टेड जो है आपके पास एक डैशपोर्ट। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने शायद आपको नहीं बताई है, यहाँ पर कनेक्टेड क्या है, फिक्स पॉइंट, राइट, और आपको दो डिस्टेंस दे रखी है थीटा 1 और थीटा 2।
So distance here theta 1 and distance here the theta 2. This particular angular displacement for the J1 and this particular, sorry ये theta 2 है, तो this particular distance theta 2 for the J2, right? तो आपको डैशपोर्ट की जो आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट दे रखा है बी दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज बताना भूल जाता हूँ, वो बता देता हूँ कि जो डैम्पर है, ये डैम्पर कहीं कुछ बुक्स यहाँ पर डैम्पर यूज में लेते हैं, कुछ बुक्स यहाँ पे डैशपोर्ट यूज में लेते हैं। बोथ आर सेम थिंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स डैम्पर टर्म्स यूज में लेते हैं, कुछ बुक्स जो है डैशपोर्ट यूज में लेते हैं, तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब वो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर कितने मास है, 2 मास है, 2 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब अगर 2 मास है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, देयर आर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट वी विल राइट फॉर J1, राइट। तो J1 के लिए अपन अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज J1 and for J1 the torque applied is T and the displacement for is theta and there are the external torque applied is T, right? Or what are the resistive torque? First you have to identify which element are connected. कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, सिर्फ K कनेक्टेड है, राइट। इसका मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव टॉर्क अप्लाइड हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने रेजिस्टिव टॉर्क अप्लाइड करा। एक तो इसकी खुद की वजह से होगा, इट इज Tj1, वहाँ अपन Fm1 लिखते थे या Tj1 एक ही बात है, ठीक है। और एक K की वजह से होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज Tk, राइट, बिकॉज देयर इज सिंगल एलिमेंट कनेक्टेड एट J1, राइट। So according to the D-Lambert principle, we can write T equal to Tj1 plus Tk, right? And what is the equation of Tj1? J into d square theta by d square, right? Here displacement is theta 1, so d square theta 1 upon dt square. And for T, what is the K? अब यहाँ पे देखो K is connected between 2 masses, right? वहाँ पर सेम थिंग है, यह 2 मास कनेक्टेड है और मास J1 जो इनर्शिया जो है उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है और मास J2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा 2। तो 2 मास के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब K की इक्वेशन क्या आएगी, K into theta. Suppose we are writing the equation for theta 1, so theta 1 is positive, so K into theta 1 minus theta 2. So this is the equation number 1. Same here, if you are writing the equation for J2, so second equation if you are writing for J2, so for J2 is there is no external force applied, so there is no torque applied, external torque applied, so external torque applied is 0. And what are about the resistive torque, because which elements are connected to the J2, K and B, right? And there are 2 resistive force and there is 1 resistive torque for the J2. So there is a 1 resistive torque due to J2 and 1 resistive torque due to the K and 1 resistive torque due to the B, right? And applying the D-Lambert principle, Tj2 plus Tk plus Tp, external torque applied is 0. So what is the equation of J2? 4 we are applying for the distance angular displacement theta 2. So J2 into d square theta 2 upon dt square प्लस for Tk is equal to, अब देखो K किस चीज में कनेक्टेड है, J2 और J1 और J2 के बीच में, बट अपन इक्वेशन लिख रहे हैं थीटा 2 के टर्म्स में, तो सो थीटा 2 इज पॉजिटिव, तो K into theta 2 minus theta 1 and plus and B is connected between this theta 2 J2 and reference point, so equation is B into d theta 2 by dt and total external torque applied is equal to 0. So we are taking the Laplace transform of this particular equation. So the second step is to finding out the Laplace transform. So we are applying the Laplace transform. So this is the T of S equal to J1 into S square theta 1 of S plus K1 K into theta 1 of S if we are multiply with K into theta 2 of S, right?
अब यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हो टर्म, मैंने सपोज थीटा थीटा 1s को आगे आप कॉमन ले लो, तो क्या आएगा j1s² प्लस के। तो यहाँ मैंने थीटा 1 ऑफ s को यहाँ कॉमन ले लिया है, इट इज माइनस के इंटू थीटा 2, राइट। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर सपोज 1 2 हो गया, इसको 3 मान लेते हैं। अगेन वी आर अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस इक्वेशन, तो j2 इंटू s² थीटा 2s प्लस k इंटू थीटा 2s माइनस k इंटू थीटा 1 ऑफ s प्लस b इंटू, अब इसका d थीटा बाई डी टी का क्या हो जाएगा s इंटू थीटा ऑफ s, और थीटा की जगह यहाँ पे थीटा 2 है, एंड टोटल सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थीटा 2 और थीटा 1 की टर्म्स आप अलग अलग कर सकते हो, राइट। तो मैं अगर सपोज थीटा 2 की टर्म्स यहाँ पर अलग करता हूँ, तो कौन कौन सी टर्म आ जाएगी यहाँ पर थीटा 2 की? थीटा 2 की यहाँ पर टर्म्स आ जाएंगी j2s², राइट। तो j2s² एंड k, एंड उसके बाद में क्या आ जाएगी bs, राइट। j2s² प्लस k प्लस bs इंटू थीटा 2s, राइट। तो मैंने आप कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे ली है, j2 इंटू s², k यहाँ पे टर्म्स आ गई, उसके बाद में b इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पे आप थीटा 1s को वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस वाली टर्म्स बन जाएगी k इंटू थीटा 1 ऑफ s, ये इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद में अब आप क्या कर सकते हो, इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पे थीटा 1 ऑफ s की जो वैल्यू जो है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना कि क्या ये पूछना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, थीटा 2s अपॉन t ऑफ s, the relation between theta 2f s and t of s, that means we have to eliminate theta 1 of s in this particular equation। आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा 1s को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर एलिमिनेटिंग द थीटा 1 ऑफ s, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4, तो आइदर यू कैन पुट थीटा 1 ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and we are putting the value of theta 1 of s into equation number 3rd, or you can finding out theta 1 of s from equation number 3rd, or you can put in the equation number 4। तो दोनों में से आप कोई भी काम करोगे आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, दोनों का जो आंसर है वो आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, राइट। सो सपोज मैं यहाँ पर थीटा 1 ऑफ s यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, थीटा 1 ऑफ s इक्वल टू j2s² प्लस k प्लस bs डिवाइडेड बाई k, यही आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 5 से जो थीटा 1 ऑफ s है वो आप कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास आ जाएगा t ऑफ s इक्वल टू j1s² प्लस k इंटू j2s² प्लस k प्लस bs डिवाइडेड बाई k, राइट, इंटू थीटा 1 ऑफ s की वैल्यू तो आपने पुट कर दी, इसमें यहाँ पर थीटा 2 ऑफ s भी आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये थीटा ऑफ s, क्योंकि थीटा 2 s तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो इंटू थीटा 2 ऑफ s माइनस k इंटू थीटा 2 ऑफ s, ये आ गया। अब आप दोनों में से क्या ले सकते हो कॉमन, थीटा 2f s यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो मैंने सपोज यहाँ से थीटा 2f s को भी कॉमन ले लिया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों में से थीटा 2f s को कॉमन ले लिया। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो किसका रेशियो पूछा है, थीटा 2 डिवाइड बाई टी का रेशियो पूछा है, राइट। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो थीटा 2 s अपॉन, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इजी रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इस फॉर्म में क्या थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको j² प्लस k, तो k यहाँ से पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू k s k² बन जाएगा, ठीक है, माइनस k² इंटू थीटा 2s। अब आप इजीली आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, ठीक है। तो थीटा 2 ऑफ s डिवाइडेड बाई t ऑफ s इक्वल टू
k divided by j1 s square plus k and j2 s square plus k plus ps. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? माइनस के, हाँ माइनस के स्क्वायर, सॉरी माइनस के स्क्वायर. ठीक है, करेक्शन कर लेना कि माइनस के स्क्वायर भी ऊपर. ठीक है, माइनस के स्क्वायर यहाँ पर आ जाए. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. देखो, आपके जो अप्रोच होगी जो क्वेश्चंस की, वो इसी तरह की होगी. आपका आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अप्रोच सेम रहेगी, अप्रोच डिफरेंट नहीं रहेगी. ठीक है, आई वेट 2 मिनट, अभी 1 मिनट में आता हूँ अभी. ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन. राइट, तो सेम आपको वर्क करना इसमें. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड differential equation, then taking the Laplace transform, then find the transfer function according to the equation. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना. ठीक है, तो ये दो सिस्टम है मेरे पास, m1 एंड m2. ठीक है, इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए अपन फाइंड करते हैं. इसके बीच में k1 कनेक्टेड है, देन k2 कनेक्टेड है. तो बहुत सिंपल सिस्टम है ये वाला. तो अपने पास जो सिस्टम है, इट इज k1 एंड k2. तो देर आर टू मास m1 and m2, right? And there is a spring connected between mass m1 and m2, and the spring connected between a fixed support. Right, the spring constant is given by k1 and spring constant is given by the k2, and we applied a force F1. Right, and what are the friction coefficient? There is no dashpot or damper are given. There is a friction coefficient are 0. Right, ये 0 दे रखा है तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज x1 and x2. तो डिस्प्लेसमेंट फॉर मास m1 इज x1 एंड डिस्प्लेसमेंट मास m2 इज. अगर आपको यहाँ 0 दे रखा है तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, इसको आप लिखो या फिर नहीं लिखो, एक ही बात है. अब सबसे पहले आप काम करना, आपको नंबर ऑफ मास इज 2. तो फर्स्ट इफ यू आर राइटिंग द इक्वेशन फॉर मास m1, मास m1 के लिए सपोज अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, तो व्हाट आर द एलिमेंट कनेक्टेड टू द मास m1? दैट इज k1. राइट, and what is the external force applied? F1. So F1, and what are the resistive forces? Force itself due to m1 and force it due to the k1. So according to the D'Alembert principle, we can write F1 equal to Fm1 plus Fk1. So force due to m1 with displacement is given by m1 d square x1 upon dt square, and for k1, see here k1 is connected between mass m1 and m2,
with displacement x1 and x2. Suppose we are writing the equation for x1, so x1, the sign of x1 is positive, so plus k1 into x1 minus x2. So this is the force F1. So this is the equation number 1. Then for equation number 2 is for mass m2. There is no external force applied. The external force are 0, and these elements connected to the mass m2 are k1 and k2. There are two elements connected to the mass m2 is k1 into k2, right? So one force due to the mass m2 itself, Fm2, one force due to the k1 itself, k1, that is Fk1, and force due to the k2, because these two elements are connected to the mass m2. So according to the D'Alembert principle, we can write Fm2 plus Fk1 plus Fk2 equal to 0, right? So what is the value of m1? m2 into d square x2 by dt square, because we are writing equation for x2 displacement, and k1, so this k1 is connected between x1 and x2, and the value of x2 is positive, so k1 into x2 minus x1, right? And this k2 is connected between mass m2 with x2, and this is the reference point, right? So k2 into x2, so k2 into x2 and equal to 0. This is the second equation, right? Again, then we applied it, or we are taking the Laplace transform, but Laplace transform of f1t is f1s. This is the f1s equal to m1 into s square x1s प्लस k1 इंटू, अब k1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली, तो आपको क्लियर हो जाएगा. मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k1 इंटू x1s, और k1 इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k1 इंटू x2s. ठीक है. अब यहाँ से x1 और x2 का आप कॉमन ले लीजिए. f1s इक्वल टू, अब यहाँ पर x1 ऑफ s से आप कॉमन लोगे तो एक तो m s स्क्वायर आ जाएगा, एक आपके पास k1 आ जाएगा, राइट, इंटू x1s, दैट माइनस k1 इंटू x2s. ठीक है. This is the equation number, suppose 1 or 2, suppose this equation is 3. Again we are taking the Laplace transform of this particular equation. So m2 into s square into x2s प्लस, इसमें k1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली ना, एक स्टेप यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k1 इंटू x2s माइनस k1 इंटू x1s एंड प्लस k2 इंटू x2 ऑफ x इक्वल टू 0, राइट. अब x2s को मैं अब कॉमन ले लो. कॉमन क्या क्या क्वांटिटी आएंगी? m2s स्क्वायर, k1 एंड k2, राइट. तो m2s स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2, राइट, एंड x2s, एंड अब इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो k1 इंटू x1s, राइट. अब क्वेश्चन में देखो रिलेशन किस किस के बीच में पूछ रहा है. द रिलेशन in this question asking x2s upon fs, that means we have to eliminate x1 of s, right. So for elimination of x1s you can put the value of x1s for this equation is 4. आप इससे भी आप पुट कर सकते हो x1s इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, या फिर आप x1s को यहाँ पे पुट कर दो, राइट. तो सपोज मैं x1 ऑफ s को यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ. So x1 of s equal to m2s square plus k1 plus k2 divided by k1 into x2s. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 5. आप इक्वेशन नंबर 5 से x1 of s की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए. ठीक है. तो व्हाट इज द इक्वेशन? f1s, ये शायद f1 नहीं था, शायद f था, अभी मैंने देखा यहाँ पे. ठीक है, ये f ही है. ये मैंने f1 लिख दिया गलती से, ये f ही दे रखा है क्वेश्चन. तो f ऑफ s इक्वल टू m s स्क्वायर प्लस k1 इंटू x1 ऑफ s, इट इज m2 s स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2
divided by K1 x2 of S, राइट, माइनस K1 इंटू x2 ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ से मैं x2 ऑफ S को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस K1 इंटू x2 ऑफ S, राइट। तो सेम हियर, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था क्वेश्चन में, ये माइनस K1 स्क्वायर हो जाएगा, ये K1 हो जाएगा। तो x2 S अपॉन FF S इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई एम एस स्क्वायर प्लस K1 इंटू M2 S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2, ठीक है। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। एनी डाउट? तो आपको जो अप्रोच रखनी है वो अप्रोच सिंपल अप्रोच रखनी है हर क्वेश्चन के लिए। अप्रोच आपको कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर सकते हो उस क्वेश्चन। यहाँ पर भी K1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, दोबारा से मिस्टेक हुई है। यहाँ पे भी K1 माइनस K1 स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अगर किसी बुक के अंदर हैं तो आप इजीली ट्राई करना, आपसे बन जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली बन जाएंगे। Then move to the next concept, एनालॉगस सिस्टम। देखो एनालॉगस सिस्टम, अपन किस एनालॉगस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, राइट। Suppose there are various quantity that in mechanical system and there are various physical quantity in electrical system. To understand, to in an easy way, we can understood the analogous system. Why? अगर आप किसी सिस्टम को, दोनों सिस्टम को इजीली जो है एक दूसरे के कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप समझ सकते हो तो एनालॉगस सिस्टम के थ्रू आप समझ सकते हो, राइट। That means if we are converting some physical quantity from mechanical system to electrical system and or electrical system to into mechanical system, right? So we can assure that mechanical system is analogous to the electrical system or mechanical system is equivalent to the electrical system, right? So we have to convert some physical quantity. So in this particular topic we will study about the some analogy. There are 4 types of analogy given in your syllabus. So first analogy is force voltage analogy. Okay? Force voltage analogy means the force in mechanical system is equivalent to voltage in electrical system. Force in mechanical system is equivalent to voltage in electrical system. ये अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड मैंने आपको सर्किट बताए रखे थे, किसका? मैकेनिकल सिस्टम का। सेम देयर इज ए सीरीज आरएलसी सर्किट फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिस इज द स्टैंडर्ड सर्किट टू अंडरस्टैंड द फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इट इज अ सीरीज आरएलसी सर्किट। आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट वी हैव and we applied a AC voltage source, that is value of this voltage source is E and the current flowing this particular circuit is I. That I means that I of t, that is time dependent, right? So if we applied the KVL in this particular loop, so according to the KVL the applied voltage is equal to sum of all the voltage group, right? So voltage applied is E and voltage across is R is I into R.
voltage across L is L di by dt, and voltage across C is 1 by C integration I dt. That is a we have to apply the KVL, right? Then we can know that current is given by the change in charge with respect to time. It is dq by dt. So we can put I, the value of I in this particular equation, right? So if I is dq by dt, so R into dq by dt, L into, if you are differentiating I with respect to time, so if we are differentiating this current, so di by dt equal to d square q upon dt square. So this di by dt into equal to d square q upon dt square and 1 by c. And if you are integrating dq by dt with respect to time, so what is the value of value of this particular quantity is q. तो दिस टर्म बिकम्स क्यू, राइट? एंड अब इस पर्टिकुलर टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, तो एक ही बात है, इस क्वांटिटी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, इसको रिप्लेस किया, कुछ नहीं किया, ठीक है? अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, ठीक है? दिस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और फॉर मैकेनिकल सिस्टम वी ऑलरेडी नो दैट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड सिस्टम इज F इक्वल टू m into d square x upon dt square plus b into ds by dt plus kx, right? Or in particular, if you are comparing these two equations, if you are comparison or compare this particular two equation, equation number 1 and equation number 2, then according to the comparison, we can see that this particular force is equal to E, or the analogous, not we are not saying equal, it are analogous, right? So force is equivalent to or analogous to E, L is equivalent to M, Q is equal to displacement X, R is equivalent to B, and 1 by C is equivalent to K, और Q को मैंने ऑलरेडी बता दिया, Q is equivalent to X. तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके लगा सकते हो कि that some physical quantity in mechanical system is analogous to इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी, राइट? सो यहाँ पर आप कंपैरिजन से आप देख सकते हो, तो मैंने जो वहाँ पर लिखा है वही मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, राइट? तो फोर्स इज एनालोगस टू, दिस इज द मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम. अगर यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है, कि फोर्स हमेशा मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में होता है. तो फोर्स इज एनालोगस टू वोल्टेज, दैट्स व्हाई वी कॉल द फोर्स वोल्टेज एनालॉजी. इसको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्यों बोल रहे हैं? कि फोर्स इन मैकेनिकल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट? एंड द अदर क्वांटिटीज आर मास इक्विवेलेंट टू एल. यहाँ पर एक ये करेक्शन कर लेना, ये भी यहाँ पे सी नहीं आएगा, 1 by c आएगा. यहाँ पर एक करेक्शन आप लिख लेना कॉपी के अंदर, ये करेक्शन नोट्स के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना. ये पेज नंबर 23 पे सी की जगह 1 by c आएगा, या एक पेज पे आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो k की जगह 1 by c है. ये देखो k है वो 1 by c के इक्वल, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना. k इज इक्वलेंट टू 1 by c एंड b इज इक्वलेंट टू r एंड x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चार्ज. ये जो टेबल है वो आपको याद करनी, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ये टेबल यूज में आएगी. तो ये टेबल आपको मेमोराइज करना है, जहां भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपको याद करना है, ठीक है? ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. एनी डाउट?